Morning, good afternoon. Good, good afternoon. Morning, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. First of all, I would like to tell you it is my first address for this session. Earlier, due to the busyness, I was not available for any type of the conversation or instructions which should be issued by us for your motivations and for your activities. For that, hello. All students are able to hear? Okay. Oh. Earlier, there was a competition which has been organized by the DAV Sanitary College, Faridabad. As I have received this message through net or through online, this message has been conveyed to the every students of the current session. And this is a matter of pleasure that many students have taken the parts in this essay writing. The essay, which was based on the very latest pandemic problem, which is COVID-19. The response of the current session was much better comparatively to the earlier session. जैसे ही हमें पता पड़ा कि फरीदाबाद कॉलेज ने कोविड-19 पर ऐसे राइटिंग हिंदी ऐसे राइटिंग का आयोजन किया है, तो हमने उसको सभी बच्चों को मैसेज किया, मेल किया कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ and write down an essay on the following topics which have been mentioned in their prospectus or in the pamphlets. This was very surprising because as the current trend regarding the B.Ed, everybody wants to be an non-attending student. There is a trend which has been trending. Very first, as the students will arrive or the parents will arrive, the first condition which has been displayed that, sir, we are unable to attend the classes. In this trend, the responses which have been received by the DAV Sanitary College, Faridabad, it is admirable. Many students have taken the parts in this essay writing. There were the three topics which have been provided by the college to write down the essay. The first is the COVID-19, the effect of the COVID-19 on the social relationships. COVID-19 का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव. दूसरा, कोरोना से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन जस्ट लाइक NGOs एज यू नो का जो रोल है उस पर. एंड थर्ड, कोविड-19 और विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती, मेंटल हेल्थ, आई थिंक विच यू हैव ऑलरेडी बीन रेड और टू बी रेड. इसमें when I will talk to the principal of the concerned college, she told me that more than 300 entries
have been received by the concerned college. And out of 300 entries, we are one of them. It is a matter of the great pleasure. All over India, this was the all over India level essay writing, not only the state, as this college was situated in Haryana only, but the essay writing was on the state, on the India level. Amongst that, the students of my college has won the first prize. The name of winner student is Hassan Raza Ansari. जो पढ़ाई है, जैसे आदमी भोजन कब करता है? जब उसको भूख लगती है। पढ़ाई वो आदमी करता है जिसके पास संसाधनों की कमी जरूरत से ज्यादा होती है। बच्चा वही पढ़ता है, बीएड बहुत करते हैं। देयर आर मोर देन 130 कॉलेजेस इन झारखंड। हर बच्चा टीचर नहीं बनता, और ना हर बच्चा उस मुकाम तक पहुंच पाता है जो वो चाहता है, क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी है, जो इंटेंशन है, जिस इंटेंशन से उसने एडमिशन लिया है, वो उसकी पूरी नहीं होती। इस बच्चे को मैं पर्सनली मिला, ये बच्चा मेरे पास पर्सनली आया था एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। इसके रिसोर्सेज बहुत कम है कंपेरेटिवली टू द अदर वन। उस बच्चे ने ये काम किया, कोई फोर्स नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। इट वाज द सिंपली a notification to all the students to take part and write down the essay on these mentioned topics. तो उसके अंदर कहीं एक क्यूरोसिटी है पढ़ने की, जानने की, नई चीज़ों को जानने की। जब मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा था तो प्रिंसिपल ने यही कहा था। बहुत सारे ऐसे आए, सभी ने क्या किया, कट पेस्ट करके उसको सेंड कर दिया, नेट से मैटर लिया और उसको सेंड कर दिया। लेकिन जो जजेस हैं वो 24 घंटे नेट पर ही रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं। जैसे एक बच्चा जो चीटिंग करके एग्जाम देता है, और एक बच्चा जिसने बिना चीटिंग की एग्जाम दिया है, जो सही मायने में एग्जामिनर है, वो जांच लेता है, नॉट इवन दैट ही हैड कमिटेड चीटिंग, he may also inform that colleagues that he has been copied this matter from that concerned book or concerned passbook। पासबुक भी नहीं, वो फेल बुक है वो, जिसे हम और पासबुक कहते हैं। वही चीज इस बच्चे के साथ है। उसे लगा ये मेरे लिए टास्क है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उसने अपनी जो लोकल जानकारियां, मैडम ने बताया कि यही एक ऐसा छात्र था जिसका जो मैटर था वो ओन क्रिएटेड मैटर था, ना कि नेट से लिया हुआ या किसी बुकलेट से लिया हुआ या किसी नोटबुक से लिया हुआ। जो इसके एक्सप्रेशंस थे, दैट वर द मेरिट। हर आदमी यही सोचता है कि कोई भी चीज दे, कुछ नहीं, ये तो नेट पे अवेलेबल है, मोबाइल है, मोबाइल से उसको कॉपी कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आपके, अब बहुत से सभी बच्चे पेपर देते हैं, सबके नंबर बराबर नहीं आते। कुछ बच्चे सिर्फ एज इट इज रट लेते हैं, उसी को जाके एग्जाम में लिख देते हैं। कुछ बच्चे जो उसमें अपना ओन एक्सपीरियंस, अपने ओन व्यूज, ओन आइडियाज को जो ऐड करते हैं, वो बच्चा उनसे अच्छे मार्क्स ले आता है। तो उसमें क्रिएटिविटी है कहीं, वो कुछ कर सकता है, कुछ और बच्चों से भिन्न है वो। अब आप ये सोचिए, 300 बच्चों में से एक झारखंड का बच्चा फर्स्ट आता है,
अभी तो जो भी है, अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते हमने उसको बहुत अच्छा पढ़ा दिया जी, हमने बहुत अच्छा उसको गाइड कर दिया या ये कर दिया। सारा कोविड-19 उसकी स्वयं की अपनी क्रिएटिविटी है, स्वयं की उसकी इंटेलिजेंस है, जितनी भी है, जो भी है वो इसमें शो होती है कि 300 पार्टिसिपेंट्स में से यदि वो बच्चा फर्स्ट आता है तो नेचुरली इट इज क्रेडिटेबल और रिमार्केबल। तो जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ 89 स्टूडेंट्स है, उनमें ऐसे कौन सा लक्षण नहीं है कि जो वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते जो हसन रजा ने किया है। वजह बस उन्होंने बीएड की मार्कशीट लेनी है, इट इज सफिशिएंट टू ऑल ऑफ देम। और यही ट्रेंड है हमारे यहाँ। सबसे लास्ट में पहले एडमिशन आते थे, शुरू में आते थे इसलिए कि जी वहाँ पढ़ाई नहीं होती, बाद में इसलिए आते थे तो वहाँ बहुत पढ़ाई होती है। इस शहर को पढ़ाना, इन कॉलेजेस को पढ़ाना, 7-8 कॉलेजेस हैं। हम ही ने इनको सिखाया कि पढ़ाया, बीएड में पढ़ाया कैसे जाता है। सिलेबस ही नहीं जानते थे बच्चे, उन्हें मतलब ही नहीं। 5 क्वेश्चन रटने थे, जाके लिख देने थे, पास हो जाने थे, 80% की मार्कशीट मिल जानी थी, बात खत्म हो गई। लेकिन अब वो भी आसान नहीं है। आप ले लीजिए 80% मार्कशीट, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू अपीयर another entrance exam. If you will qualify that, then you may be a teacher. May be, not confirm. टेट पास किए हो कितने बच्चे घूमते हैं। रोज वाराणसी में जाइए, रोज कोई अनशन करता है, कोई हड़ताल करता है, कोई आंदोलन करता है, हमने टेट पास कर लिया है। लेकिन उस टेट की जो वैलिडिटी है वो भी टाइम लिमिट है। आपको फिर पढ़ना है 2 साल 3 साल जितनी भी। तो जब तक आप पढ़ाई से भी छोड़िए, जब तक आप नॉलेज से, चाहे नॉलेज किसी भी क्षेत्र में हो, उससे आप अपने को बचते रहेंगे, यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ द सक्सेस इन योर फ्यूचर, इन योर लाइफ ऑल्सो। आपको हर हालत में पढ़ना ही होगा। कंसेप्ट है, अगर ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, तो आपको उस डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो जानना ही होगा कि डेवलपमेंट है क्या चीज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा पढ़ा है ना? किसने पढ़ा है? किसने पढ़ाया है? कौन कौन से सर? पढ़ाया है ना? कुछ ना कह रहे हैं, कुछ हाँ कह रहे हैं। एनीवे, इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है। इनके बीच का डिफरेंस बताया उन्होंने? तुम्हें पता है? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? Anybody else who can say that I am differentiate or I can define the both term? Yes. Name? बोलिए। Such as?
Okay, this is the thing. It means while your teacher will ask that what I have told you, if you will respond properly, then a teacher will be satisfied in himself that the students are learning. यहाँ डीएवी डीएवी का मतलब है यदि आप डीएवी में हैं, 90 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे बीएड करने के बाद कहीं भी एंगेज होना चाहिए। और वो एंगेज कब होगा? जब उसके पास नॉलेज होगा। अभी तक का इस महाविद्यालय का ये रिकॉर्ड है कि कोई भी छात्र जो भी आपसे मिले जिसने यहाँ से बीएड किया है वो आपको फ्री नहीं मिलेगा। एंड इट इज ओनली ड्यू टू द लर्निंग। वो सीखता है। नहीं मिले गवर्नमेंट जॉब वो गलत चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब इट इज नॉट नेसेसरी। अल्टीमेटली यू मस्ट हैव टू एंगेज योर सेल्फ इन द टीचिंग प्रोफेशन। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि टीचिंग है क्या, टीचिंग कैसे कहते हैं। इट इज नॉट ए प्रोफेशन, इट शुड बी अ क्यूरोसिटी, इट शुड बी अ इंटरेस्ट। रुचि, यदि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को, किसी भी टास्क को पाने की रुचि है, देन यू मे अचीव दैट। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ नेसेसरी। आदमी क्यों ढूंढता है गवर्नमेंट जॉब? बताइए। आपने बीएड किया है, आपके अंदर एलिजिबिलिटी है, यू हैव परफेक्टली लर्न अबाउट द ईच एंड एवरी टॉपिक और द concept which you have read, or of that you have appear for the examination of the university level, then what is the problem? If you have eligibility, you have a knowledge, then you will be able to get the better job in the private sector comparatively to the government sector. गवर्नमेंट में आदमी इसीलिए जाना चाहता है कि दैट इज अ डिपार्टमेंट वेयर you have to pay for do nothing. Is it or not? और यदि किसी आदमी को बेकार बनाना है, मतलब उसको बिल्कुल ही जीवन उसका नष्ट कर देना है, तो उसको फ्री बैठा दीजिए। उसके बाद वो किसी मतलब का नहीं रहेगा। जब तक आप अपने सब्जेक्ट से, अपने टॉपिक से, अपने प्रोफेशन से अटैच हैं, तब तक आपकी वैल्यू है, अदरवाइज देयर इज नो वैल्यू एट ऑल। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला टीचर गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा सैलरी लेता है, पता है तुम्हें? हेलो है? तो उसमें ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी वो प्राइवेट में ले रहा है? he has something more in himself comparatively those teacher who have been in the government sector. गवर्नमेंट सेक्टर में आदमी ने जाना है, पेड़ के नीचे चेयर डालते बैठ जाना, ही हैज टू डू नथिंग। बच्चा आए नहीं आए उसको सैलरी आनी है। मल्टी टैलेंटेड होता है। यस, नेम योर आरती से। हाँ, या स्टूडेंट, उससे उससे आप, हाँ, उससे आपका जो ओन डेवलपमेंट है वो होता है। उसके बाद मान लीजिए आपको और फर्दर जाना है और अच्छी जगह जाना है, तो देन यू में अपीयर और यू में फेस द इंटरव्यू ऑफ द नेक्स्ट एजेंसी और द नेक्स्ट स्कूल और द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और द नेक्स्ट ट्रस्ट। इतने अच्छे अच्छे ट्रस्ट है जो 10 से 12 लाख रुपए पर एनम देते हैं, मोर देन, इससे भी ज्यादा देते हैं, बशर्ते यू शुड बी डिजर्व फॉर दैट। और उसी डिजर्विंग जो क्वालिटी है उसको हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं उन छात्रों को जो हमारे यहाँ एडमिटेड है। उसके लिए तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो जरूरी है। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 20 बच्चे बिल्कुल ही पैसिव हैं,
जो अटेंडेंस होती है नियर अबाउट 70 और 71, 72 बस, दैट्स ऑल। और आज भी 74 है। जो ये रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स हैं, व्हाट दे विल डू? दे विल डू नथिंग। यदि सरकार की नौकरी उनकी लग जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज वो माँ बाप पर बोझ बने बैठे रहेंगे। माँ बाप भी उनको गालियां देंगे, 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में हमारे में आग ला दिया, घर में बैठा हुआ है या बैठी हुई है। शादी हो गई होगी, सास ससुर उसको गालियां देंगे, इतने पैसे में आग ला दी हमारे में, अभी तक इसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन ये जो 70 स्टूडेंट है, मेरी बात को आज ध्यान से सुनना, ये जो 70 स्टूडेंट है, certainly they will achieve their target, their motive. And this act which has been done by the Hassan Raja verify that or confirm my statement. और इसकी सफलता के लिए इसको जो प्राइज है वो तो कंसर्निंग महाविद्यालय से मिलेगा ही। हम अपने बिहाफ पर इसको 3 महीने का वैलिडिटी वाला एक रिचार्ज कर देंगे, इसके जो भी इसका व्हाट्सएप नंबर होगा। अब आप एक बात बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमने रिचार्ज ही क्यों डिसाइड किया है? यस, दैट विल बी द बेनिफिशियल टू हिम। पैसे दे देते हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे क्या करता, पैसे से खर्च हो जाने थे, वो उसको पढ़ाई में यूज नहीं होना था। इसलिए हमारी तरफ से इसको 599 होता है, कितना हो गया जी, जो भी है, जो 3 महीने का होता है, उसका इसको विद नेट के साथ रिचार्ज कराएंगे हम। और बाकी जो प्राइज वाला जो अमाउंट है, दैट शैल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न कॉलेज of Faridabad. And further, again, I want to say, till then you are here, you must have to show your interest in reading, knowledge, and all the activities which has been prescribed by the syllabus. You should be perfectly familiar about each and every concept which has been mentioned in your syllabus. If you will do so, naturally you will feel pleasure. तुमको मजा आएगा पढ़ने में, रहने में, आने में, कॉलेज आने का आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसी के हिसाब से जो एटमॉस्फेयर है वो आपको यहाँ ऐसा दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हम अच्छी जगह जा रहे हैं, हमको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। Again, in the last, I congratulate to Hassan Raja and also inform him that he should intimate to Sonu sir of his WhatsApp number for recharge of 3 months. And again congratulate, and I will hope in future if such type of the competitive exams will be organized by any other institution, much and much more students will participate in that. Okay, over to Mukesh sir.